A very good morning, dear students. Welcome to e-learning classes of Sacred Hearts of the subject economics. Dear students, we were on the chapter foreign exchange market out of the book Macroeconomics. Dear students, till the previous lecture, we have discussed till the fixed exchange rate. And in the last lecture, we have discussed the meaning of fixed exchange rate system and when the exchange rate is decided higher than equilibrium, what are the implications? We have discussed about the devaluation, the implications of devaluation, and then we have discussed when the exchange rate is set lower than the equilibrium exchange rate, what will be the impact, appreciation, revaluation, and the implication of revaluation. Apart from this, we have discussed about the gold standard system of exchange rate and the Bretton Woods system of exchange rate, that was also known as adjustable peg system of exchange rate. And last but not the least, we have discussed about the managed floating as well. Today we are going to complete our chapter 11 foreign exchange rate, and today we are going to discuss about the components of demand of foreign exchange, components of supply of foreign exchange, thereafter foreign exchange market. So let's get started. Initially we will discuss the first topic, that is the components of demand for foreign exchange, or we can say why is foreign exchange demanded. That means कि वो कौन से components हैं जिनकी वजह से हमें foreign exchange की requirement होती है, हम demand करते हैं, या फिर foreign exchange की demand क्यों होती है. The very first point is the repayment of international loan. For making the repayment of the loans, that means the loans that we have taken, for the repayment of them we are needed with the foreign currency of the certain country whosoever have provided us loan. Second one, investment in rest of the world. Dear students, see, investment in rest of the world is an important business activity. जो इन्वेस्टमेंट है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में वो एक क्या है, इम्पॉर्टेंट बिजनेस एक्टिविटी है. वी नीड करेंसी ऑफ द कंट्री इन विच द इन्वेस्टमेंट इज़ टू बी मेड. हम जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, हमें करना चाहते हैं, हमें उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए. Thus, US dollar are needed or demanded if the investment is to be made in USA. In the same way, if you are going to invest in Iraq, then dinar is needed. If you are going to invest in Japan, then the yen is needed. ठीक है, तो आप जिस कंट्री में इन्वेस्टमेंट करना चाह रहे हैं उसकी फॉरेन करेंसी या उसकी डोमेस्टिक करेंसी आपके पास होनी चाहिए. Next, imports. We used to import a lot of goods and services. For making the imports of goods and services from the rest of the world, it is required that we must be backed with the sufficient availability of the foreign exchange, because payments of imports are made in foreign exchange only. ठीक है, इसका जो पेमेंट होता है वो किस में होता है, सिर्फ फॉरेन एक्सचेंज में होता है. नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम एब्रॉड. जनरली वी यूज टू विजिट as a tourist to the rest of the world, and sometimes we used to visit the rest of the world as a student or for the medical treatment and so on. But whensoever or wherever is it possible, whenever we used to विजिट अब्रॉड, वी यूज़ टू मेक सम डायरेक्ट परचेजेस फ्रॉम देयर. फॉर एग्जाम्पल कि आपने अपने एसेंशियल्स परचेज कर लिए, या फिर अपने फ्रेंड्स को, रिलेटिव्स को गिफ्ट करने के लिए कुछ वहाँ से परचेज कर लिया. इन ऑल दीज कंडीशंस यू मस्ट बी नीडेड विद द करेंसी ऑफ दैट पर्टिकुलर कंट्री. Next one, grants and donations. Dear students, grants and donation to rest of the world also contribute to the demand of foreign exchange. जो ये ग्रांट्स एंड डोनेशंस आप दे रहे हैं वो जनरली कौन सी करेंसी में होती है, उस पर्टिकुलर कंट्री की करेंसी में होती है जिसको कि आप ग्रांट्स एंड डोनेशंस दे रहे हैं. तो दैट मीन्स कि इन ग्रांट्स एंड डोनेशंस को देने से पहले आपको किसकी रिक्वायरमेंट होगी, फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट होगी. नेक्स्ट एंड लास्ट पॉइंट इसने आपको बताया, दैट इज़ द पेमेंट ऑफ इनकम्स. देयर आर अ लॉट ऑफ पीपल हु यूज टू बिलोंग टू रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड, बट दे यूज टू प्रोवाइड देयर सर्विसेज टू द nation, that means to the domestic in the domestic economy.
In this condition, the demand of foreign exchange is needed to make the payment to these people so that they can repatriate द अमाउंट एब्रॉड, ताकि वो जो अमाउंट क्या कर रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, उसे अपनी कंट्री में अपनी फैमिली मेम्बर्स को भेज सकें, ताकि वो अपने लाइवलीहुड के जो भी रिक्वायरमेंट्स उन्हें फुलफिल कर सकें. सो ऑल दीज आर द हेड्स फॉर विच द फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड. नाउ द नेक्स्ट टॉपिक, कंपोनेंट्स ऑफ सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. अभी हम लोगों ने देख लिया कि भाई हमको फॉरेन करेंसी की रिक्वायरमेंट कहाँ कहाँ पर होती है. नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस कि फ्रॉम वेयर वी यूज टू गेट द सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. वी आर गोइंग टू डिस्कस द सोर्सेज ऑफ फॉरेन एक्सचेंज. द वेरी फर्स्ट पॉइंट इज द एक्सपोर्ट्स. व्हेन वी यूज टू एक्सपोर्ट द गुड्स, in return we used to get the foreign currency. The goods used to move out of the country, and in return we used to get the foreign currency. Thus the export of goods and services from India to US would mean supply of foreign exchange in India. That means कि country में क्या होगा, डॉलर का इनफ्लो होगा. आगे देखिए, इन्वेस्टमेंट फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. दैट मीन्स जब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से FII दैट इज़ द फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टमेंट, FDI दैट इज़ फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के फॉर्म में इन्वेस्टमेंट आता है, तो इट इज़ ऑल्सो इन द फॉर्म ऑफ फॉरेन करेंसी. नेक्स्ट, डायरेक्ट परचेजेज बाय रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. As we used to visit the rest of the world, in the same way the people of the rest of the world used to visit our country, and whenever they used to make any direct purchases, it is in the form of their currency. It leads to the supply of foreign currency in the country. Next, loans from rest of the world. Whenever we used to have the loans from rest of the world, it is generally in the form of foreign currency. नेक्स्ट, ग्रांट्स एंड डोनेशंस फ्रॉम रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड. जनरली जो डेवलप कंट्रीज़ होती हैं वो ग्रांट्स एंड डोनेशंस प्रोवाइड करती हैं, एंड ये जो ग्रांट एंड डोनेशंस होती हैं वो उनकी ही करेंसी में होती हैं. वाई? बिकॉज देयर करेंसी इज़ वेरी कॉमनली एक्सेप्टेबल, जिससे कि पर्टिकुलर कंट्री जिसको ग्रांट एंड डोनेशन मिल रही है वो अपने फर्दर इम्पोर्ट्स के पेमेंट कर सके. Now the next topic is the foreign exchange market. As the name is signifying, foreign exchange market एक ऐसा मार्केट जहाँ पे फॉरेन एक्सचेंज का क्या होता है बेटा, सेलिंग एंड परचेजिंग होती है डिफरेंट नेशंस की, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट बोलते हैं. देर आर 3 फंक्शंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. द वेरी फर्स्ट फंक्शन, ट्रांसफ़र फंक्शन. इसमें क्या होता है, आपकी डोमेस्टिक करेंसी को फॉरेन करेंसी में कन्वर्ट करके आपको क्या प्रोवाइड करता है, इट ट्रांसफर द परचेजिंग पावर. दैट इज़ वाई द फर्स्ट फंक्शन इज द transfer function. Second, credit function. It implies the provision of credit in the terms of foreign exchange for the export and import of goods. क्या करता है ये, आपको import और export purpose के लिए credit के फॉर्म में क्या करता है, जो फॉरेन करेंसीज हैं वो प्रोवाइड करता है. थर्ड, इसने बताया आपको hedging function. And what is this? It implies protection against risk related to the variations in the foreign exchange rate. आपका जो फॉरेन एक्सचेंज रेट में वेरिएशंस आते हैं, ये उसके रिस्क को क्या करता है, मिनिमाइज़ करता है, आपको उसके अगेंस्ट में प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है. एक्सचेंज रेट इज़ लॉक. अब हेजिंग फंक्शन क्या है, जब इन एडवांस एक्सचेंज रेट को लॉक कर देते हैं, डिसाइड कर देते हैं, इट इज़ नोन एज द हेजिंग फंक्शन. नाउ सी, ऑपरेशंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज मार्केट. डियर स्टूडेंट्स, फॉरेन एक्सचेंज मार्केट ऑपरेट्स. अब जो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट है वो 2 तरीके से काम करता है. फर्स्ट एज द स्पॉट मार्केट एंड द सेकेंड वन इज द फॉरवर्ड मार्केट. लेट अस डिस्कस देम वन बाय वन. इनिशियली द स्पॉट मार्केट. इट इज़ द मार्केट इन विच फॉरेन एक्सचेंज ट्रांजेक्शंस ऑफ द करेंट नेचर यूज टू हेल्ड. दैट मीन्स जिसमें सिर्फ स्पॉट ट्रांजेक्शन या करेंट ट्रांजेक्शन्स होते हैं उसको हम लोग स्पॉट या फिर करेंट मार्केट बोलते हैं. आगे देखिए, दीज transactions are of daily nature. It does not trade in future deliveries. ये डेली नेचर के होते हैं और इसमें कोई भी आपकी फ्यूचर की कंटीजेंसी या डिलीवरी यहाँ पर फ्यूचर की अराइज नहीं होती है. The spot rate of exchange is that rate which prevails at the time when the transactions are made. Now the second one is the forward market. As the name is signifying, forward market. तो एक ऐसा मार्केट जिसमें कि उन सारे ट्रांजेक्शन्स को बाइंड अप करते हैं जो कि फ्यूचर डिलीवरीज के लिए क्या होते हैं, एग्जीक्यूट होते हैं. ये पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन स्टार्ट प्रेजेंट में होते हैं और इनकी जो एंडिंग है, दैट मीन्स जो ये मटेरियलाइज्ड होते हैं वो कब होते हैं, ऑन सम फ्यूचर डेट. आगे देखिए,
इट ओनली कैटर्स टू फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन। अब आपके जो फॉरवर्ड मार्केट है उसमें सिर्फ फ्यूचरिस्टिक ट्रांजेक्शन ही इन्वॉल्व होते हैं। सी फर्दर, इट डिफाइंस फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। जिस रेट पे आपका फॉरवर्ड मार्केट में ट्रांजेक्शन एग्जीक्यूट होते हैं उसको हम लोग बोलते हैं फॉरवर्ड एक्सचेंज रेट। नाउ सी अ नोट ओवर हेयर, वाई आर फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स कॉन्ट्रैक्टेड। भाई फॉरवर्ड ट्रांजेक्शन्स क्यों होते हैं, दिस इज द नोट। There are two reasons. The first reason, to avoid the risk of any adverse change in exchange rate. Exchange rate change होता रहता है ना, we all know that। तो इसमें कोई बहुत ज़्यादा एडवर्स रिस्क ना हो उसको क्या करने के लिए, अवॉइड करने के लिए। एंड सेकेंड, एंड देर आर सम सर्टेन पीपल हु यूज टू डू द ट्रांजेक्शन्स टू मेक द स्पेकुलेटिव गेन, जिसमें हाँ चांसेस हैं कि हमें प्रॉफिट हो सकता है। ठीक, after this note, see the last topic, that is the difference between the spot and forward market. See the first point, handles. If we talk about the spot market, then it used to handle with the current transactions, and in the concern of forward market, it used to handle only the future delivery transactions. Next, rate of exchange. If we talk about the spot market, then the rate of exchange is the spot rate of exchange, and in the forward market, the rate of exchange determined is the forward exchange rate. And the last, allows. स्पॉट मार्केट जो आपका होता है वो हेजिंग अलाउ नहीं करता है। जो एट प्रेजेंट उस समय एक्सचेंज रेट चल रहा होता है आपको उसी पे ट्रांजेक्शन करना होता है, देयर कैन नॉट बी एनी चेंज। एंड इन द फॉरवर्ड मार्केट इट अलाउज हेजिंग, हो सकता है कि आप वहाँ पे हेजिंग फंक्शन का क्या करें, यूज़ करें। सो दिस इज ऑल अबाउट टुडे एज वेल एज अबाउट द चैप्टर। टुडे वी हैव डिस्कस्ड अबाउट द कंपोनेंट्स ऑफ डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, components of supply of foreign exchange market, and the functions of foreign exchange market, and thereafter operations of foreign exchange market. Last but not the least, the difference between spot and forward market. God bless you all.